नित्यानन्देश्वरसमारम्भां नित्यानन्देश्वरिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and respects. I welcome all the devotees, disciples, Sarvagna Pita Yajamans, Samajis, Satsangis, Shri Mahants, Mahants, Tanedar Kotari, everyone sitting with us through Nityananda TV and two-way video conferencing, having Nayana Diksha all over the world. It's my privilege and honor. On behalf of the Nityananda Sangha, I would like to kindly welcome Aghora Pitadishwar Atmaram Maharaj Ji from Kinaram Mat, Hariharpur. He is from the Aghora Sampradaya and he is in the lineage of the great Aghori Baba Kinaram Maharaj Ji. And I would like to first give a little bit introduction about Kinaram Baba. Actually, last year, we were having inner awakening in the same place. On the night of 1st July 2005, when Swamiji was resting in Samadhi, Swamiji suddenly heard a flight sound. Usually in Samadhi, Swamiji won't hear any sound or he won't see anything. But Swamiji was shocked. Then slowly, Swamiji started recognizing the external atmosphere. He thought, we are nowhere near an airport. And even if there is an airport, when I fall into Samadhi, I never hear any sound of flight moving and all that. How come? When Swamiji was wondering like this, he suddenly saw Kinaram Babaji was flying in his cot. नित्यानंदम, जब पिछली बार स्वामी जी का कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, जब स्वामी जी यहाँ पे बनारस में थे, तो जब स्वामी जी समाधि अवस्था में रहे, उस समय में स्वामी जी को एक शब्द सुनाई दिया, जैसे फ्लाइट मतलब एयरबस का जो है साउंड सुनाई दिया. स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पे कोई तो एयरपोर्ट तो है नहीं, तो ये साउंड आया कहाँ से. तो जब वो देखे खोल करके, तो किनारम बाबा जो है वो अपने जो कट है ना, चारपाई, उस पे बैठ करके उड़ रहे हैं. Kinaram Baba is a great Aghori who used to fly just by touching his cot. Wherever he wants to go, he will just touch that cot. He used to sit on a wooden cot, and that cot is still there in his ashram in Varanasi. He is not using his body anymore. His body is in Jiva Samadhi, but he doesn't need that body and all that. Like helicopter, that cot used to go along with him. When Swamiji saw him, he asked, "Where are you going?" Kinaram Baba replied, "No, I came to give darshan. This time I will express through you." This time I will express through you and give all the initiation. उस समय जब स्वामी जी वाराणसी में थे, तो किनाराम बाबा इतने महान हैं कि वो जो चारपाई है उसको छूते ही वो उड़ता है. वो कहीं पे भी जाते थे, वो उड़ करके पहुंच सकते थे, उड़ करके जा सकते थे. जब उस समय स्वामी जी ने उनको देखा, तो उन्होंने कहा कि इस समय में मैं आया हूँ और कि आपके जरिए, मतलब स्वामी जी के जरिए ही जो दीक्षाएं यहाँ पे हो रहे हैं, जो शक्तियों का दीक्षा हो रहे हैं, वो सारे स्वामी जी के द्वारा मैं स्वयं
आपके द्वारा इसमें दीक्षा दूंगा यहाँ पे बनारस में, ऐसा उन्होंने कहा। This time I will express through you and give all the initiations. Make all these people do whatever need to be done through this Kundalini awakening. And Swamiji just bowed down in respect and offered him his respects. स्वामी अपने प्रेम पूर्ण भाव से नमस्कार किया, कीनाराम बाबा जी का प्रणाम किए। And by that time, in 2 to 3 seconds, in just 2 to 3 seconds, when Swamiji was offering his respects, the entire idea of respected, and the person respected, all that disappeared, and Swamiji fell into the space of Advaita. और उस समय में जब स्वामी जी उनको अपना सम्मान प्रदर्शन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, उस समय में उस 2 सेकंड की स्थिति में सब कुछ उभान हो गया। मतलब अपने आप वो उनका दृश्य, कीनाराम जी का चारपाई, उनका स्वरूप सब कुछ अदृश्य हो गया और स्वामी जी अद्वैत अनुभव में फिर चले गए, मतलब समाधिस्थ हो गए। Not only in those days, even now, the great beings who achieved the space of Shivoham are just moving around here and there. They are all very much available in this sacred land of Varanasi. उस समय भी नहीं, आज भी महान आत्माएं बनारस में आज भी वो अवेलेबल हैं हम सब के लिए इस बनारस की पृष्ठभूमि पर। Kinaram Baba is one of the great Aghori whose recorded biography goes to 440 years. 480 साल की उनकी जो पुराना ये कथा है, जब कीनाराम जी बाबा जी की जो कथा है ये 480 साल पुराना है, बहुत बहुत पुराना। Kinaram Baba used to have a cot. Wherever he wants to go and give darshan to some devotees or wants to see someone, he will just tap the cot and it will fly. It will fly wherever he wants to go. He will go and he will bless the people and he will come back using his physical body. कहीं पे भी कीनाराम बाबा अगर कहीं पे भी जाना चाहते थे, वो अपने वो चारपाई को स्पर्श करते थे और वो वहाँ उड़ करके पहुँच सकते थे। किसी भी भक्त को आशीर्वाद देना है तो वो वहाँ जा सकते थे और वापस आ सकते थे वो इस शरीर के माध्यम से, मतलब शरीर होते हुए वो कहीं पे भी उड़ सकते, पहुँच सकते थे और आ सकते थे और जा सकते थे उड़ करके। There is no physical, psychological, physiological rules for them. They just break everything. उनके लिए कोई मानसिक या कोई शारीरिक जैसे नियम है कि इंसान कैसे उड़ सकता है, इंसान कैसे स्पेस में ट्रैवल कर सकता है, वो कोई नियम उनके लिए लागू नहीं होता था। वो किधर भी जाना चाहते थे, कुछ भी करना चाहते थे, वो सब नियम के बाहर था। And Kinaram Baba's Samadhi, he has a Jiva Samadhi here through which he is still alive. आज भी उनकी जीव समाधि है यहाँ पे और वो जागृत हैं। When he was alive, they built their tomb. He just sat and he told his devotees, disciples, to build a tomb, a Jiva Samadhi around him. उन्होंने अपनी जब वो आखिरी अवस्था में उन्होंने कहा कि वो जीव समाधि बैठे हुए समाधिस्थ होते हुए उन्होंने कहा था कि वो उनके ऊपर समाधि बनाने के लिए। He just told his disciples, cover the stone, enough. I'm going to be sitting here forever and blessing all of you. He just said like that, and that is called his Jiva Samadhi, which is still here in Varanasi. The tomb built where you are alive is called Jiva Samadhi. जहाँ जीव समाधि का मतलब है जहाँ कभी भी वो कभी भी शरीर त्यागे नहीं और कभी भी उनका जो है हमेशा उनका प्राण अभी भी मौजूद है और अनंत अनंत काल के लिए रहेगा। वह जहाँ वो अवेल उनका शरीर और उसके ऊपर समाधि बन करके अवेलेबल हैं, आज भी उस ऊर्जा वहाँ पे कायम है और वही जीव समाधि का स्थल आज भी कीनाराम मठ में आपको दिखने को मिलेगा। In the same sampradaya, the disciple of Kinaram Babaji, Aghora Pitadeshwar Atmaram Maharaji is here with us today, sharing the stage with Swamiji, and it's a great privilege and a blessing for all of us that Maharaji has come today to grace all of us. उसी संप्रदाय में आज हमारे साथ उनके परम शिष्य आत्मानंद जी महाराज जी, हरिहरपुर मठ कीनाराम स्थल के पीठाधीश्वर
हमारे साथ यहाँ पधारे हैं स्टेज पर, उन सबका जोर शोर से स्वागत करें ताली बजा करके। We now request the Maharaj Ji to share a few words. आप महाराज जी से अनुरोध करेंगे कि महाराज जी कुछ शब्द बोलें हमारे सारे भक्तजनों के लिए। आदरणीय परमहंस नित्यानंद स्वामी जी, काशी के धरती पर आए हुए समस्त श्रद्धालुगण, समस्त संतगण, आप सबको बाबा आत्माराम की तरफ से शुभ प्रणाम। काशी की धरती, बाबा विश्वनाथ की धरती पर आप सभी लोगों का आना कितना आनंदित लग रहा है इस बरसात के मौसम में। Maharaj is feeling so great that in this rainy season and all of you are here and he is welcoming on behalf of the mutt, all of you present here. मोक्षदानी माँ गंगा के पवित्र पावन भूमि पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आप लोग धर्म के माध्यम से स्वामी जी के नेतृत्व में यहाँ पधारे हुए हैं। स्वामी जी बहुत महान काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में इनकी चर्चाएं चल रही हैं। Swamiji is doing extraordinary work for the religion, for Sanatana Dharma. All across the world, his work on the Dharma is going on. ये हमारे धर्मगुरु हैं जो हमको सही दिशा निर्देश दे रहे हैं समय समय पर। भगवान का भी अवतरण हुआ है और जब भी महान आत्माएं आती हैं तो सामाजिक परिवर्तन लाती हैं, सामाजिक कुरीतियों को मिटाती हैं, अच्छाइयों को देती हैं। Whenever divine soul comes, there is change happens in the society, and Swamiji is a divine soul. After which arrival, there have been changes happening in the society all around. इस काशी की पवित्र पावन भूमि पर, ये शिव जी की नगरी है, शिव जी की सबसे प्यारी नगरी, बाबा भोलेनाथ की अवघड़दानी की नगरी है काशी की भूमि। हमारे बाबा कीनाराम जी इस धरती के महान संत हुए जिन्होंने की प्रकृति की व्यवस्था को भी तार तार कर दिया। उन्होंने मुर्दे से जिंदा किया। जो रामजियावा राम जी उनके शिष्य हुआ करते थे। एक मुर्दा बहते हुए जा रहा था, गुरुजी खोपड़ियों को चना खिला रहे थे। दत्त गुरु जो है कालू राम के रूप में गिरनार से यहाँ आए थे। माता रानी हिंगलाज पाकिस्तान से चलकर आई, क्रीमकुंड पर स्थापित हुई। बाबा कीनाराम जी उस समय में हमारा देश मुगलों के साम्राज्य में शिकंजे में कसता जा रहा था। साधु संतों से पकड़ करके जेल में चक्कियां चलवाया जा रहा था। बाबा कीनाराम जी 12 वर्ष की अघोर साधना गिरनार की पर्वत पर दत्त गुरु के आदेशानुसार उन्होंने किया। उस समय इनके परम शिष्य हुआ करते थे बीजाराम जी, इन्होंने भिक्षाटन के लिए भेजा। उस समय जूनागढ़ जिले का राजा अनिश था जो साधु संतों को पकड़कर जेलों में डाल देता था, उनसे जेलों की चक्कियां चलवाता था, तमाम यातनाएं देता था। बीजाराम जी जब भिक्षाटन के लिए गए तो Swamiji is talking about Baba Kinaram ji. He said this is the place of Lord Shiva, and Kinaram ji is a great saint who has come here, and Kinaram ji had done a great tapasya of Aghora tapasya for 12 years, and he was telling about during the tenure of Kinaram Baba, there used to be a king. The dharma was in a very bad shape at that time, and
the rajas the kings used to do the rule, very strong and rude ruling at that time. बीजाराम को पकड़ करके अनीस के सैनिकों ने उन्हें जेल में डाल दिया। बाबा जब ध्यान लगाए तो बीजाराम जी को देखे कि जेल में पड़े हुए हैं। बाबा भी चल दिए। अनीस के सिपाही बाबा को भी पकड़कर जेल में डाल दिए। बाबा के पास एक कुबड़ी रहा करती थी, उसी कुबड़ी से उन्होंने उन चक्कियों को छू दिया। चक्कियां चलने लगी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनीस के सैनिक देख करके घबरा गए कि ये क्या हो गया कि चक्कियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वो राजा के पास गए, अनीस भी वहां आया, देख रहा है कि चक्कियां चलने का नाम ही नहीं रुक रही हैं। तो उसने बाबा के यहाँ नतमस्तक हुआ, उनसे माफी मांगी। बाबा के आदेशानुसार समस्त संतों को उसने रिहा किया। The king was so suddenly the king was kept has one person and put in the jail. Then when Baba protested, he also caught Baba and put him in the jail. Then suddenly Kinaram Baba just touched the mixture, the grinder. That time there used to be stone grinder in the jail. So when he touched the grinder, it continuously started moving, and then it didn't stop. Even everybody got stunned how it is moving on its own. Then the information went to the king. The king came to saw, and then he saw that the Baba's power is so much that anything he wants he can do. So he surrendered to Babaji, and then Babaji came out. देखिए, समय समय पर महान आत्माएं जब भी आई तो एक संदेश जनता को दिए। महात्मा बुद्ध जी भी इसी काशी के पवित्र पावन भूमि पर आकर के उनको शांति मिली। उनको ज्ञान तो जो है बोध गया में ही मिल गया था, लेकिन शांति जो है काशी की धरती पे ही मिली। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी शांति है। शांति मन से मिलती है, शांति विचार और भाव से मिलती है। आज हमारे बीच में स्वामी जी को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप धर्म के लिए इतने लड़ रहे हैं। Today in the world, everybody wants peace, and peace can be attained by sadbhav and right thinking. And today he is so happy to see Swamiji radiating that and leading people into the path of peace, and he is so happy for that. कुछ लोग आलोचना भी कर रहे थे स्वामी जी का। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि धर्म की आलोचना नहीं होनी चाहिए, संत की आलोचना नहीं होनी चाहिए। विवेक भगवान का है। अगर आप किसी संत की आलोचना कर रहे हैं तो स्वयं आप अपनी आलोचना कर रहे हैं, भगवान की आलोचना कर रहे हैं। He wants to tell to the people, some people who just criticized Swamiji, that when you are criticizing a master, you are criticizing God himself. And he is telling you can never criticize God, you can never criticize a saint, you can never criticize dharma. धर्म हमारा यही सिखाता है कि आपस में प्रेम होना चाहिए। आलोचनाएं होनी चाहिए, लेकिन उसका एक सिस्टम होना चाहिए। रही बात धर्म की, तो धर्म तो महान है। धर्म को बचाने के लिए स्वयं भगवान शंकराचार्य के रूप में आए। 24 अवतार हो चुका है भगवान का। जब जब आए तो समाज के लिए आए हैं भगवान। महान आत्माएं जो भी आती हैं वो समाज के लिए आती हैं। Whenever any great soul comes, like Shankaracharya, always came down to protect religion. And whenever a saint appears, is to spread and protect religion. संत भगवान का व्याख्यान रामचरितमानस में सबसे पहले तुलसीदास जी ने सब कुछ लिख दिया है। संत वंदनीय होता है, संत पूजनीय होता है। Tulsidas ji has mentioned in his scriptures that the saints is to be worshipped.
संत अपने जीवन की सारी खुशियों को न्यौछावर करके समाज के लिए सब कुछ समर्पित करता है। संत सहे दुख पर ही तलागे। Saint sacrifices everything, gives everything to the society. So he is to be most respected. स्वामी जी देश विदेश में हर जगह धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कितना महान काम है। जरा सोचिए आप लोग कि जो व्यक्ति अपने जीवन का सारा समय परमार्थ के लिए कर रहा हो, धर्म के लिए कर रहा हो, समाज के लिए कर रहा हो, वो कितना ही वंदनीय है। The person who does everything for others' benefit, he is to be worshipped only. आज पूरा विश्व शांति की कल्पना करता है, शांति की तरफ देख रहा है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो समाज में अशांति फैलाते हैं, विघटनकारी व्यवस्था करते हैं। Today the whole world is looking towards peace. Everyone is looking towards peace. But in such time, some elements, they wants to create ruckus in the society. भगवान उन्हें भी सद्बुद्धि दें Let God give them right knowledge. कि वो समाज के मुख्य धारा में आकर के कंधे से कंधा मिलाकर वो भी जो चले। They should come into the mainstream society and live with the mainstream society. सच कहूं तो आप लोगों को देखकर इतनी खुशी हो रही है। आप लोग तमाम देशों से आए हुए हैं। Truly speaking, seeing you, I am feeling so happy. You all have come from various countries. अतिथि देवो हो, आप हमारे भगवान के स्वरूप हैं। You are guest here, and you are like God. You are the God, because guest is God. मैं बाबा विश्वनाथ जी से, काशी कोतवाल भैरवनाथ जी से, मोक्षदायिनी माँ गंगा जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को आजीवन सुख और शांति प्रदान करें। I pray to Lord Shiva, Kashi Vishwanatha. I pray to Ma Ganga Maya, and also I pray to Kal Bhairav, that all of you get peace and bliss for your whole life. तो स्वामी जी को प्रणाम, समस्त भक्तजनों को शुभ आशीर्वाद, समस्त संत जनों को मेरा हार्दिक शुभ प्रणाम। He's offering his pranam to Swamiji and his blessings to all the devotees and his greetings to all the saints sitting here in the audience.